Good afternoon, students. So, in the previous lecture, we have completed the alimentary canal and the gland is present inside the alimentary canal. If we start from the mouth, we have seen in the mouth there are present three pairs of salivary glands. First gland, then in the stomach, in the walls of stomach, there are present thousands of microscopic glands called gastric glands. Then in the intestines, we have intestinal glands. So all these glands were present inside the gut. Now there are two other glands. They are present outside the gut. First is the pancreas that is present just in the abdomen, and second one is the liver that is present uh, on the upper side of the stomach in the abdomen again. So as far as pancreas is concerned, uh, before we discuss about the pancreas and the liver, let us first try to know about what is a gland. ग्लैंड हम थोड़ा सा देखेंगे ग्लैंड क्या होता है. व्हाट इज ए ग्लैंड? ग्लैंड कोई भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन हो सकता है जो कोई भी केमिकल सबस्टेंस रिलीज करता है रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन. Glands are the cells are the tissues or organs which release some chemical substances or chemical compounds which are required for a particular function. That is called a gland. इसको हम अगर कह सकते हैं the cell, tissue or an organ that secrete some chemical compounds required for a particular function. It's called a gland. So gland is any cell or tissue or an organ that has the ability to release some chemical compounds which are required for a particular function. These chemical compounds can stimulate the function or they can inhibit the function. These are the two important functions performed by these chemical substances. As far as the types are concerned, there are three types of these glands. First one is endocrine gland. Endocrine gland. Second one is exocrine gland. And third one is heterocrine glands. Three types of glands are there. First is the endocrine gland, second is the exocrine gland, and third one is the heterocrine gland. Endocrine glands are those glands which lack ducts and pass their secretions directly into the blood surrounding them. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ग्लैंड है, ये कोई भी सेक्रेशन रिलीज करता है, इसके आसपास जो सर्कुलेशन होती है वो डायरेक्टली उसमें डाल देता है. इसमें कोई स्पेसिफिक पाइप या स्पेसिफिक डक्ट नहीं लगा होता है जिसके थ्रू ये अपनी सेक्रेशन दूसरी जगह तक पहुंचाता है. It does not possess the ducts or the pipes or the passages through which it releases the chemical substances or it tries to reach its chemical substance to a specific location. नहीं, ये डायरेक्टली जितने भी ब्लड वेसल्स इसके आसपास होंगे उसमें डायरेक्टली डाल देता है विदाउट एनी ग्लैंड, विदाउट हैविंग एनी डक्ट. तो इनका हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड. दूसरा, पुट their secretion directly into surrounding blood. इनके आसपास हर किसी ऑर्गन से हर टिश्यू का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये डायरेक्टली उसमें डाल देते हैं. इसके लिए कोई सेपरेट डक्ट नहीं होता है. इनकी सेक्रेशंस को मोस्ट प्रोबेबली हम कहते हैं हार्मोन्स. इनकी जो सेक्रेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोन्स. तो बहुत सारे ये जैसे कि अगर आप क्या नाम है इसका ले लो, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है.
थाइमस ग्लैंड, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, बहुत सारे और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। उनके पास कोई डक्ट नहीं हो तो डायरेक्टली अपनी सेक्रेशन या टेस्टिस, वो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। उसके बाद होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो ग्लैंड्स जो ये भी रिलीज करेंगे सेक्रेशन, ये भी रिलीज करेंगे, बट दे हैव द स्पेशल पैसेज थ्रू व्हिच दे reach their secretion to a specific location या discharge their secretion to their specific location. ये वो ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स होती है फॉर डिस्चार्जिंग देयर सेक्रेशंस ऑनटू द बॉडी सरफेस और इनटू द कैविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पोजेस डक्ट्स, डक्ट का मतलब होता है पाइप्स, और डिस्चार्जिंग सेक्रीशन। दूसरा क्या होता है, सेकेंड थिंग इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनकी एग्जाम्पल लिख लोगे, सेलिवरी ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स होते हैं। दूसरा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड उनके पास भी डक्ट, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, वो सारे उनके पास डक्ट्स होते हैं जो डक्ट के थ्रू अपनी सेक्रेशन निकाल देते हैं। सेकेंड वन इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट एंडोक्राइन पार्ट होगा, दूसरा पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट होगा। एक्सोक्राइन पार्ट डक्ट के थ्रू अपनी सेक्रेशन निकालेगा, एंडोक्राइन पार्ट किसके थ्रू निकालेगा, डायरेक्टली ब्लड में डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे exocrine glands possess both endo and exo parts। की बेस्ट एग्जांपल है पैनक्रिया, इसलिए मैंने ये इसके बारे में आपको बताया। सो दे आर द ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ बोथ exocrine and endocrine tissues. The exocrine tissue sends its secretion are produced by way of duct and endocrine tissue discharges its secretion into the blood. So pancreas है, gonads है, they are heterocrine glands, वो एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब इसी तरह का एक ग्लैंड है हेटेरो टाइप का, दैट इज कॉल्ड द पैनक्रियास। उसी के बारे में हमें थोड़ा सा देखना है, पैनक्रियास क्या है। पैनक्रियास एक, सबसे पहले याद रखना आपको, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दूसरी चीज लोकेटेड, लोकेशन कहां पर होती है, बिलो स्टोमक इन एब्डोमेन, ये हमारे एब्डोमेन में होता है, ठीक है। कितना बड़ा होता है, किस कलर का होता है, इट इज येलोइश, येलोइश इन कलर, येलो कलर का होता है, हमारे स्टोमक के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसका, अगर हम कितना बड़ा होता है, अगर हम वेट देखेंगे इसका, व्हाट इज द वेट ऑफ द पैनक्रियास, 60 ग्राम। अगर हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.6 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम इसका थोड़ा सा विड्थ देखने की कोशिश करेंगे, इसकी जो विड्थ है, तो वो सॉरी 16 सेंटीमीटर्स होती है। अगर हम विड्थ कहेंगे, विड्थ का इसका लगभग 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। एंड it has been divided into 3 parts. This part is called tail, this main part is called the body, and the part very close to the duodenum, this is called the head, ठीक है। And in the process of digestion we will discuss only one part of this, that is the exocrine part। यहाँ पर हम सिर्फ exocrine part इसका देखेंगे। exocrine part means ducted part, जो ducted जिसके पास होगा।
वो क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक, एंड जो एक्सोक्राइन पार्ट इसका होता है वो क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। कितना पैनक्रियाटिक जूस ये रिलीज करता है वो हम देखेंगे, और उसमें क्या चीजें होती हैं वो भी हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे कितना पैनक्रियाटिक 1 लीटर पर डे रिलीज कर लेता है ऑलमोस्ट। इसका जो पीएच होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो 8.8 होते हैं, दैट मींस अल्कलाइन पीएच होता है इसका, ठीक है। और क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो अब इसी पैनक्रियाटिक जूस का हमें कंपोजिशन पढ़ना है क्योंकि वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन में देखेंगे हम। The pancreatic juice contains sodium bicarbonate NaHCO3। क्यों इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ पर जो यहाँ से जो फूड काइम मैंने कहा था, जो फूड कंटेंट स्टोमक से निकलेगा वो आएगा डुोडेनम में, पर जब डुोडेनम में फूड जाएगा यहाँ पर उसके साथ मिला होगा एसिड, तो दैट विल बी एन एसिडिक फूड कंटेंट। दिस एसिड may destroy the walls of the intestine, duodenum. So in this pancreatic juice, it is also released in the duodenum. This contains a base that is called NaCO3 that neutralize the acidity of the this कायम का फूड कंटेंट, ठीक है। सेकंड, इसमें 3 प्रो एंजाइम्स होते हैं, 3 प्रो एंजाइम्स। मैंने पहले ही दिन कहा है प्रो एंजाइम्स का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, या जिन का भी मतलब होता है इनएक्टिव। 3 प्रो एंजाइम्स निकाल देता है, व्हाई, बिकॉज दे मे डाइजेस्ट आवर ओन body, that is why they are released in inactive form. When the food is present they are then activated. फर्स्ट कौन सा होता है इसमें, हम यही 3 एंजाइम्स देखेंगे। पहले ट्रिप्सिनोजन, सेकंड जो होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड थर्ड वन जो होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। These 3 proenzymes are present in the pancreatic juice. First is the trypsinogen, second is the chymotrypsinogen, third one is the procarboxypeptidase. तो ये जो तीनों एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, किस कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करेंगे। इसके अलावा इस पैनक्रियाटिक जूस में और भी बहुत सारी चीजें होती है वो हम देखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च, जो स्टार्च रह गया है उसको डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो लाइपेड्स रह गए हैं उनको बनाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। थर्ड वन होता है, एक और होता है न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस, जो किसको डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स कितने हैं, 2, DNA RNA, डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनको इनके कंपोनेंट्स में वो डाइजेस्ट करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रोटीन्स के लिए भी हम कंपोनेंट फूड एंजाइम्स होता है, स्टार्च की डाइजेशन के लिए भी एंजाइम होता है, लाइपिड्स की डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है, और न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है। दैट मीन्स हर एक फूड कंपोनेंट के लिए देयर इज प्रेजेंट एन एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, क्यों इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट एंजाइम्स फॉर एवरी काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है पैनक्रियाटिक जूस की। तो इस तरह से जो भी
प्रोटीन पार्ट रह गया वो इस यहाँ पर ये वाले डाइजेस्ट करेंगे। जो भी स्टार्च रह गया यहाँ पर उसकी डाइजेशन भी होगी, लाइपिड्स रह गए उसकी डाइजेशन भी होगी। लेकिन डाइजेशन कहाँ पर होगी, क्योंकि ये जूस डाला जाएगा किसमें, हेपेटोपैंक्रियाटिक ट्रैक्ट के थ्रू डाला जाएगा ये डुओडेनम में, डुओडेनम इसको लेके आएगा इंटेस्टाइन में। इसीलिए कहते हैं इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में 3 जूसेस मिलेंगे, लिवर का जूस बाय पैंक्रियास का जूस पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन का अपना जूस इंटेस्टाइनल जूस, वहां पर डाइजेशन फिर कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद अब रह जाता है लिवर, इंशाल्लाह वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।